don't know the story, so I will understand from. Long ago in a kingdom far away, Okay. a happy king and queen threw a party. It was to celebrate the birth of their daughter, Aurora. 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 Okay. Three good Fairies. fairies came to bless the child. Aurora gave. I think it's Rapunzel. Okay, maybe. Let's see. No problem. Yeah. Flora gave Aurora the gift of beauty. Flora is one of the fairies, no? Yeah, fairies. Okay. Gave Aurora the Fauna gift. gave her the gift of song. Okay. She is also A fairy. fairy. Flora and fauna. Actually, flora and fauna in English means greenery and animals. Yeah. Fauna is the animals and flora is the flora and fauna of a place means the greenery and the animals of the place. Anyway, it doesn't matter. It's a fairy tale. Anything goes. Yeah. Then the evil Devil Maleficent appeared. appeared. Okay. She was very angry. Oh, what a shame. Yeah. What is No. you're saying same, na? Yeah. Actually, no. It is shame. SH. So it is sure. Not so. Doesn't matter. What a shame. What a shame. Shame. Yeah. Okay. Yeah. You are not happy to see me, Yeah. she said. She said it is Yeah. SH, no? It is sure. Like Sharma. Yeah. She She said. said. Yeah. There was no invitation. Yeah. I thought that was a mistake. Well, I thought that was a mistake. Okay. Well, never mind. I too have a gift for the child. Yes, she will grow. She. She. Sure. Sure is See. as in in what you say sure? Any Shamil. Any Hindi words you tell me is sure? There is sure inside. Any Hindi words? Sanjay. No. Okay, shak. You know shak, suspicion. Shak. You would say shak, no? Or Shahrukh. You would say Shah, no? You say Shahrukh? Yeah, sorry. Yeah, they always say sir. It's Shah. Anyway, it doesn't matter. Huh? You have to just practice saying Shah, yeah? Later on at home, maybe, you know? Yeah. She said. Okay. There was no invitation. Yeah. I thought that was a Even mistake. though no, you're saying invitation, it is shin, invitation. It is Shah. Anyway, it doesn't matter. I will see what to do. Yeah, Shah. Well, never mind. I too have a gift for a child. For the child. Yeah. Yes, she will grow Yeah. in beauty and grace. Yeah. But on her 16th birthday, she will pick She will. her finger on a spinning wheel and die. Oh, this is Sleeping Beauty. This is a story Yeah. of Sleeping Beauty. Sleeping. Okay. Yeah. Yeah. So I just wanted to tell me from here to here. Yeah. Could you just what is this? Oh no, she said. The next one. Okay, The doesn't next matter. This much you can tell me. Like what did you understand from this? Just translate. Yeah. तो बहुत साल पहले किंगडम Kingdom मतलब होता था। kingdom को क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य. राज्य Is it? I'm asking. Okay. हाँ. और Far away मतलब दूर. दूर बहुत दूर है बहुत दूर. राज्य Yeah. मतलब Yeah. हैप्पी किंग एंड क्वीन थ्रू अ पार्टी मतलब एक किंग ने मतलब एक ऑर्गेनाइज किया था एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया. हाँ. इट वाज सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ देयर मतलब अपने डॉटर के बर्थडे की सेलिब्रेशन Okay. उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी डॉक्टर का नाम Aurora. था अरोरा. थ्री गुड फेरी कम टू प्लेस मतलब फेरीज तीन गुड फेरी जो फेरी मतलब क्या? परी. Is it? Okay. परी. Fine. को आशीर्वाद देने के लिए आशीर्वाद, ब्लेस करने हाँ, के लिए हाँ, उनके बच्चे को हाँ. वो भी आए हाँ. पार्टी में शामिल है हाँ. फ्लोरा gave Aurora to pick Flora this is one of One of the fairies, yeah. Furies Fairies. fairies हाँ. और the gift of beauty का मतलब एक beauty gift दिया ब्यूटी का गिफ्ट दिया मतलब क्या? beauty gift दिया ब्यूटी गिफ्ट मतलब हिंदी में क्या है उसका मतलब खूबसूरत हाँ मतलब she said yeah. खूबसूरत Yeah.
मतलब she will be beautiful, like Yeah. girl will be beautiful, yeah. It means I thought you're not mistaking it for some cosmetics, ना? She didn't, मतलब कोई cosmetic नहीं दिया, हाँ उसका beauty नहीं दिया, हाँ. मतलब कुछ तुम खूबसूरत हो गई वैसे. आशीर्वाद आशीर्वाद, correct, correct, हाँ. Swana gave her the gift of song. Yeah. The other one of Other fairy, yeah. fairies gave Yes. her the gift of song. मतलब गान अच्छी तरह से गा song सकेगी, का gift correct. दिया. She'll be able to sing well, yeah. Then the evil Maleficent appeared. मतलब एक भूत क्या होता है? Okay, actually Rakshas. it's a witch, yeah. Actually it's a Rakshas is a witch. A witch. Evil, maleficent. Evil मतलब what do you say for evil? Good का opposite. Evil. मतलब बुरा. हाँ, correct. Evil. उससे बुरे से भी ज़्यादा. Anyway, no problem. Evil, maleficent. I think the name of the witch is Maleficent. उसका नाम जैसे Flora. Maleficent is the name of. वो नेम भी है और एडजेक्टिव भी है. Maleficent मतलब evil भी है. वो मुझे चेक करना पड़ेगा डिक्शनरी में what is maleficent, but it means bad only. लेकिन उसका नाम भी Maleficent है. Appeared मतलब शामिल हो. Party. प्रकट हो गई. Okay. She was very angry. वो बहुत गुस्से में थी. Oh, what a shame! You are not happy to see me. मतलब मैंने क्यून और किंग को देख के बोला कि आप मुझे देख के खुश नहीं हैं. खुश नहीं है. हाँ. उसने उसी से मतलब उसने बोला. हाँ. There was no invitation. मतलब उसके लिए यहाँ पे कोई इन्विटेशन उसको नहीं दिया था. नहीं दिया था. Evil को. हाँ हाँ. मतलब वहाँ पे कोई इन्विटेशन नहीं था उसके लिए. correct. I thought that was a mistake. मतलब उसने आपने मिस्टेक किया. आपने मुझे इन्विटेशन नहीं दिया. हाँ आपने मुझे मिस्टेक किया. उसने बोला I thought मैंने सोचा. हाँ. Well never mind. चलो कोई बात नहीं. I too have a gift for the child. तो मेरे पास भी गिफ्ट है. गिफ्ट है आपके बच्चे के लिए. Yes, he will grow in the beauty of the and grace. हाँ वो ब्यूटीफुल भी होगी और ग्रेसफुल भी होगी. लेकिन मतलब जैसे ऐसे हाँ नहीं जैसे इन लोगों ने आशीर्वाद दिया वो ब्यूटीफुल भी होगी और ग्रेसफुल भी होगी. लेकिन But on her 16th birthday, she will prick her finger on a spinning wheel. But जैसे ही वो 16 की 16 साल की 16 साल की होगी, she will prick her finger. स्पिनिंग व्हील एंड मतलब क्या स्पिनिंग व्हील. हाँ स्पिनिंग व्हील या जो स्टिचिंग के लिए यूज़ करते हैं ना वो सोइंग मशीन. Spin होगा. हाँ वो उसमें एक स्पिनिंग व्हील है. वो जैसे वो स्टिचिंग के लिए यूज़ करते हैं ना वो सोइंग मशीन. उसमें एक छोटा सा नीडल है. वो सोइंग मशीन आपने हाँ आपने सोइंग मशीन देखा है जो टेलर स्टिच करते हैं ड्रेसेस. हाँ तो वहाँ पे एक नीडल है. हाँ एक स्पिनिंग व्हील है. हाँ वहाँ पे एक स्पिनिंग व्हील है और एक सुई भी है. एक सुई है. वो सुई पे अपना हाथ she will prick it and वो मर जाएगी 16 साल. जैसे ही वो हाँ उसका हाथ उस सुई के नीचे. हाँ वो ही करेगी. वो प्रिक करेगी अपना हाथ वो सुई एक्सीडेंटली. हाँ she will die. एंड शी विल डाई. सर कर्स दिया है. कर्स को क्या कहते हैं? भविष्य वाला कर्स. पहले से ही बोल हाँ जैसे आशीर्वाद का ऑपोजिट कर्स. पहले से ही भविष्यवाणी. भविष्यवाणी नहीं उसने ऐसा किया है. ऐसा नहीं होने वाला था. लेकिन उसने ऐसा शी इज अ बैड पर्सन. उसने कर्स दिया क्योंकि शी इज वेरी एंग्री अबाउट समथिंग. पहले का कोई बात होगा शी इज एंग्री अबाउट समथिंग इन द पास्ट. उसके पहले का भी एक स्टोरी है वो मैं स्लीपिंग ब्यूटी आप ओरिजिनल देखेंगे उसका पहले का भी कुछ है. ये क्यों इतना एंग्री है. हाँ और The queen ran to the crib and hugged her baby. मतलब उसकी माँ. हाँ उसकी माँ वहाँ पे उसको भाग गई अपने बच्चे को उसको गले से लगा. गले से लगा. वो नो सी से उसने बोला कि हाँ नो ये तो गलत. yes yes. Some different words. हाँ कौन सा वर्ड्स. एक्चुअली ना आपका सब सही है. इट्स ऑल राइट. ओनली वो प्रोनाउंसिएशन जो है ना श और स वो आप ज़रा लिखेंगे वहाँ पे आप. हाँ और प्रोनाउंसिएशन से हाँ शी नो नो श यू हैव सेड आप सही बोल रहे हैं. बस वो श एंड यू आर ऑल्सो बेटा वो पार्ट ऑफ दिस then the evil manifestation appears she
She. Sure. What a shame. And also see the sure. Only SH. Don't underline the whole word. Only this SH. Correct. Everything else is perfect what you have said. There's no mutation. I thought there was a mistake. Well, never mind. I do have a day. She will grow in beauty and grace. Everything else is correct. What? Anything you want? You want to know? Because she will poke. Hi. You should tell us in advance, no, Ravi Shankar. I can't teach both of you. I'm very sorry, and you have not shaved. I'm scared. I know you were in Goa. Yes. And you dressed very well. Thank you for that. Wait, I want to give you your book. लेकिन अभी आप 6:30 to 7:30 अपना शीट is there और you want 1 hour or 2 hours? एक्चुअली इसको कुछ टाइमिंग का प्रॉब्लम मतलब वो इन्फॉर्म नहीं किया था। हाँ इन्फॉर्म नहीं किया। मेरे साथ ही आ जाता है नेक्स्ट डे से। So when you want to come today only you want? No, today's office. अच्छा you just came to say hello. Yes. Okay, good. I thought you came for the class. Yes. Okay, fine. So when you will come tomorrow or when you will come? अभी तो Okay. No, you tell me when you will come. आप कब आ सकते हैं? नहीं अभी आप क्लास के लिए आए कि बोलने क्लास के के लिए? लिए है। क्लास के लिए ही आ गया था। लेकिन आपको पता नहीं था? नहीं पता था इसलिए का 4 o'clock में जाऊंगा। हाँ। मैंने कहा साथ में पढ़ लेंगे। साथ में नहीं? बस 1 to 1. मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है. Yeah. So when so tomorrow you can't come ना? Tomorrow. So then. अब हम लोग का सेम शिफ्ट रहेगा अभी। हाँ सेम शिफ्ट रहेगा हाँ. So then you will have to come early. आपको सुबह आना पड़ेगा या फिर 3 o'clock से स्टार्ट करना पड़ेगा या 2 o'clock से स्टार्ट करना पड़ेगा? चलेगा मैं कभी चलेगा हाँ तो so I'm just seeing today. नहीं, I have another idea. See now. 5:30. No, yeah, I'm just saying 6 o'clock. So I can teach you 1 hour today. ओके नो So 6 o'clock is okay for you? ओके 6 o'clock. 6 o'clock is okay? Yeah, 6 o'clock is fine. So 1 hour at least I can. Okay. And 7 to 8 I will take makeup. ओके So can you come at 6 o'clock? ओके Thank you. I'm scared of the beard. Always tell him to shave and come. You know why? Because he says that he wants to go for the for the interview and all that. He wants to answer the interview and all that. So I always tell him it's not only about English. It's about grooming. You know, it's about getting into the habit of grooming. You know, then people will relate to you differently. Then you will talk to the interviewer differently. He will talk to you differently. Your confidence will be increased. You know, he listens to me kind of thing. You know, I mean, last time also he came properly. But he has a problem with grooming, you know. But at least he was dressed properly. हाँ. It means poke करना. Poke. P-O-K-E. Poke मतलब एक सुई से आपको poke करेंगे. Poke को क्या बोलते हैं हिंदी में? What do you say for poke? वो चुहाना। हाँ. चुबाना. I wanted to actually poke him so that he understands what it is. Yeah, that's fine. It's fine. Actually, Ravi Shankar wanted to learn together with you. That is what he wants. Yeah. Okay, tell me. After Maleficent left, the third good fairy Yes. gave Aurora her gift. Aurora. Aurora gift Yes. her gift. हाँ. Meriwether हाँ. told King Stefan. Yeah. Stefan and the Meriwether is the name of the third fairy. third Fairy. fairy. Actually, Meriwether means good weather. That is also there. Flora, fauna, and Meriwether. Yeah. Meriwether told King Stefan and the king she could not take away Maleficent's Curse. curse. She could only change it. Yes. Aurora would prick her finger, but she would not die. Instead, she would fall into a deep sleep. Yes. Only true love's kiss would wake her. Right.
the king died. Did not. Okay. The king did not want to take any chances. Yes. He ordered his men to burn every spinning wheel in the kingdom. Yes. When after the spinning wheels were gone, the king wanted to do more. The good fairies said Aurora could live with them in the woods until she was 16. Maleficent would not be able to find her there. The king wanted Aurora to be safe. She told them to take Aurora away. Aurora away. Aurora away. Okay. What it means? और उसके जाने के बाद Maleficent के Maleficent गई. जाने के हाँ, बाद गई. the third good fairy Correct. थी. हाँ. gave Aurora her gift, मतलब उसको gift दी. Okay. The third fairy is Merryweather. Merryweather. Told King Stephen and Queen she will not take away. इसलिए मतलब King Stephen हाँ. और Queen से कहा हाँ. कि जो Maleficent है, she will not take away Maleficent. She will not take away Maleficent curse. मतलब वो Maleficent का जो शाप है वो वापस नहीं ले सकते. वापस नहीं, हाँ, शाप जो है वो वापस नहीं ले सकते, लेकिन वो क्या कर सकती है? वो बदल सकती है थोड़ा, उसको थोड़ा ठीक कर सकती है, बदल सकती है थोड़ा. Merryweather. जब Merryweather आई तो उसने देखा कि सब लोग रो रहे हैं, सब प्रॉब्लम है, तो उसने पूछा होगा कि क्या प्रॉब्लम है. उसने बोला कि ये Maleficent आई थी और ये सब गड़बड़ कर दिया है. तो शी सेड अभी मैं वो शाप वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन उसका मैं थोड़ा शी कैन ओनली चेंज इट, थोड़ा चेंज कर सकती है. हाँ, लेकिन क्या चेंज करेगी वो? Aurora would prick her finger and she would वो अपना फिंगर वो चुभाएगी उसके पास लेके आएगी. अरे हाँ, और she will poke it also, but she will not die. वो मरेगी नहीं. हाँ, इंस्टेंट. जबकि दूसरी तरफ नहीं वो मरेगी नहीं, लेकिन she will fall into a deep sleepness. वो सोएगी बस, वो मरेगी नहीं, लेकिन वो सोएगी. लेकिन वो बहुत साल वो सो रही थी एक्चुअली वो स्टोरी में, फेरी टेल में बहुत साल वो सो रही थी. हाँ. हाँ. Only two lost this book देखना, मतलब तुम तो प्यार करने वाला, सच्चे प्यार करने वाला आएगा, उसको किस करेगा उसको, तो जाएगी वो मतलब सुई जैसी चुभेगी वो डीप स्लीप हाँ. में. हाँ. मतलब जो राजा है हाँ. उसको चांस नहीं लेना चाहता, उसको कोई चांस नहीं लेना, उसको कोई रिस्क नहीं लेना है. रिस्क नहीं लेना. उसी ऑर्डर हिज मैन टू बर्न एवरी स्पिनिंग व्हील. हम लोग अपने सिपाही और आदमी मतलब जो भी इसके सर्वेंट्स है, ऑफिसर्स है, ऑर्डर देता है कि जितने भी स्पिनिंग व्हील पूरे राज्य में सब बर्न कर दो, जला दो. करेक्ट. Even after spinning wheel were born, the king wanted to do more. अगर उसके बाद भी अगर कोई स्पिनिंग व्हील नहीं लेकिन आफ्टर स्पिनिंग व्हील वन किंग वांटेड टू, मतलब स्पिनिंग व्हील सब जला दिया, फिर भी वो किंग सेटिस्फाइड नहीं था, किंग को और भी कुछ करना था. वो फिर भी डर रहा था. हाँ. कुछ और करना चाहिए. हाँ, और भी और सेफ्टी मेजर्स उसको लेना है. The good fairy said Aurora to live with them in the wood until she was 16. मतलब जो थर्ड फेरी थी, गुड फेरी. नहीं, वो गुड फेरीज दोनों, ऑल थ्री फेरीज ने बोला उसको कि गुड फेरीज. हाँ, गुड फेरीज ने बोला, मतलब गुड फेरीज जो तीनों गुड फेरी, Maleficent नहीं, बाकी 3 गुड फेरीज, उसने बोला कि Aurora could live with them in the woods. मतलब अरोरा उनके साथ वुड्स में, मतलब लकड़ी का वुड्स. नहीं वुड्स मतलब जंगल, उनके साथ जंगल में. वुड्स का इंग्लिश में वुड्स मतलब जंगल, फॉरेस्ट. हाँ. उनके साथ रह सकते हैं जंगल में 16 साल तक. 16 साल तक उनके साथ रह सकते हैं. हाँ. Maleficent will not be able to find her there. मतलब जो evil witch है Maleficent, वो जंगल में ढूंढ नहीं पाएगी. हाँ. लेकिन क्वीन भी चाहती थी कि औरत सेफ रहे, तो उसने कहा कि टेक अवे, मतलब अपने साथ ले जाओ. The thief fairies lived in the woods
an ordinary old woman. Yes. Aurora lived with them. The king and queen missed their child, but they knew she was safe. Great. After her 16th birthday, she would come home. At least the great day came. Go out and pick us some berries. Berries. Yes. Aurora said the good fairies. They wanted time to get ready for a surprise party. As Aurora walked through the woods, she sang. A handsome young man was riding through the forest. He had Heard. heard her. He stopped to listen. Then he came over to talk. They liked each other very much. Aurora asked him to come to the house that night. He said he would come. दूसरी फेरीज में हाँ। तो जंगल में हाँ। एक ऑर्डिनरी ओल्ड वुमन की तरह अच्छा, okay. Three fairies living house as ordinary old women. Okay. Ordinary, हाँ, ordinary बूढ़े बूढ़ी की तरह, बूढ़ियों की तरह, हाँ. और अब उनके साथ Aurora lived with him, हाँ. लेकिन किंग और क्वीन जो है अपने चाइल्ड को बहुत मिस करता है बट वो जानते थे कि वो सेफ है. हाँ. आफ्टर हर सिस्टम वजह से वो कैन आफ्टर मतलब 16 साल के बाद हाँ. वो वापस अपने महल में राज्य में Correct. वापस आ जाएंगे. अपने घर में वापस आएंगे. हाँ, वो राज्य महल भी है. हाँ. एटलीस्ट द ग्रेट डे कम. हाँ. 16 साल बाद एक ग्रेट नया नहीं, फाइनली मतलब एट लास्ट वो बड़ा दिन आ गया. तो उसका 16th बर्थडे का दिन आ गया. go out and pick up some berries. और मतलब उन्होंने ने ऑर्डर दिया. नहीं, वो फेरीज ने अरोरा को बोला कि आप थोड़ा बेरीज लेके आओ हमारे लिए. अच्छा मतलब हाँ. berries ऑर्डर ऑर्डर नहीं किया, सेट द फेरीज. सेट. हाँ, उसने बस उसको बोला, उसको ऑर्डर नहीं करेंगे ना. बहुत प्यार से देंगे खराब. बेरीज मतलब वो नहीं कॉल दैट, वो जो खेलते हैं छोटा छोटा खाने का. हाँ, वो जामुन नहीं, कुछ और हम लोग पेट से नहीं, उसको क्या बोलते हैं. कोई भी बेरीज, स्ट्रॉबेरी हो सकते हैं या कोई भी बेरीज, लेकिन गोल राउंड राउंड राउंड. They wanted time to get ready for a surprise party. हाँ, वो लोग क्यों उसको क्यों भेजा बाहर, क्योंकि वो रेडी होना चाहते थे वो पार्टी के लिए. पार्टी के लिए. हाँ. As Aurora walked through the woods, she sang. जैसे ही Aurora नहीं, जैसे वो बाहर गई जंगल में वो बेरीज लेने के लिए, वो गाने लगी. वो गाने लगी. handsome young man was riding through the forest. मतलब एक handsome young man हाँ. राइडिंग करता हुआ जंगल से आ रहा था. गुजर रहा था. हाँ. He heard her. तो उसने उसकी आवाज़ सुनी. सुनी. He stopped to listen. वो सुनने के लिए रुक गया. हाँ. उसकी आवाज़. Then he came over to talk. Then वो उसके पास गया बात करने. हाँ. बात करने. They liked each other very much. वो एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे. हाँ. और asked him to come to the house that night. और ने उससे पूछा कि क्या तुम मतलब हमारे घर आओ. हाँ, घर आने के लिए उसको रिक्वेस्ट किया या उसको पूछा आ सकते हैं कि नहीं. तो उसने कहा कि हाँ मैं जरूर आऊँ. हाँ. He said he would come. हाँ. हो गया ना? Yes, you are seeing if there's any difficult word in that. Yeah.
Then Aurora came back to the cottage. The fairies gave her a cake and a new dress. Then they told her the best part of her birthday surprise. It was time for her to go and live in the castle. कासल Castle. कासल मतलब महल, राजा का महल कासल। पैलेस भी बोल सकते हैं, कासल भी बोल सकते हैं। They expected Aurora to. उसमें टी साइलेंट है, टी के उसमें ब्रैकेट्स कर सकते हैं। नहीं हाँ ठीक, कासल। They expected Aurora to be happy, but she was not. She told them about the young man she met in the woods. She said he was coming back to see her. The good fairies shook their heads sadly. They told her she should not fall in love with him. She was a princess when she had to marry a prince. Her real home was the कासल। castle. Yeah, correct. She had to go back. और जब वापस अपने कॉटेज में आई तो द फेरिस गेव हर केक एंड फेरिस ने 3 फेरिस दिया, उन्होंने उनको केक दिया और न्यू ड्रेस। क्योंकि उसका बर्थडे था। Then they told her the best part of birthday surprise. उन्होंने उसको बेस्ट पार्ट ऑफ द बर्थडे सरप्राइज। उसको बोला अभी बोला ये बर्थडे का बेस्ट सरप्राइज ये है, ये नहीं बेस्ट सरप्राइज बोल रहे हैं वो कि उसको अपने कासल में जाने के लिए टाइम हो गया, वो है सरप्राइज, बर्थडे का सरप्राइज। ये केक और ड्रेस वो सबसे बड़ा सरप्राइज नहीं है। सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि अभी वो राजमहल में जाने वाला है, जाने वाली है। कासल वो टी के वहाँ पे आप ब्रैकेट्स डाल सकते हो, टी साइलेंट है। हाँ वो साइलेंट है टी। उसका टाइम आ गया। हाँ वो था उसका सबसे बड़ा सरप्राइज बर्थडे का वो है कि वो अभी राजमहल जाके रहने वाली है। तो 16 में पहुंचने वाली है। हाँ क्या वो 16 में पहुंचने वाली है। वो 16 हो गई, आज उसका 16 बर्थडे है, लेकिन सबसे बड़ा बर्थडे सरप्राइज ये है। वो ड्रेस और केक वो छोटा सरप्राइज था और पार्टी थोड़ा छोटा सरप्राइज, लेकिन बड़ा सरप्राइज ये है कि वो राजमहल जाने वाली है आज। हाँ उसने सोचा नहीं, उन लोगों ने सोचा कि अरोरा खुश हुई थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। उसने बोला कि हाँ She told them about the young man she met in the woods. उसने young man के बारे में बताया जिससे उसने जंगल में मिली थी। She said he was coming back to see her. उसने बोला कि वो वापस मुझे देखने के लिए आने वाला है। The good fairy saw their head sad. मतलब लोगों ने ऐसा सैडली मतलब दुख से उसने ऐसा किया है। हाँ करेक्ट। हाँ They told her she should not fall in love with him. मतलब उसको एडवाइस दी या बोला कि आप उससे प्यार नहीं कर सकते। She was a princess and she had to marry a prince। मतलब उसको प्रिंस से शादी करना चाहिए। ऑर्डिनरी लोगों से प्रिंस है, शादी उसकी प्रिंस से ही होगी। वो प्रिंसेस है और उसका शादी प्रिंस से ही होना चाहिए। Her real home was the castle. राजमहल उसका असली घर। She had had to to go go back। उसको जाना ही पड़ेगा। Then they got to the castle. Maleficent was waiting. Yes. It did not take long for the princess to fall under her spell. Following strange green light, Aurora climbed up the dark tower steps. In the tower room was a spinning wheel
Aurora had never seen one before. She reached out to touch it. She could not stop herself. The room filled with smoke and when Kishan appeared, she had gone. The good fairies hurried to the castle, tried to find Nagar, but they were not. They were too late. When they got there, Aurora had fallen into a deep sleep. Only two love's kiss could not awaken her. The fairies remembered the young man Aurora had met in the woods. They were sure Aurora loved him. They had to find him. When they got to the castle, जब वो लोग राजमहल पहुंचे Rajmahal तब मेलिफिसेंट वहाँ पे थी, उसके लिए वेट कर रहे थे। हाँ, fairies and Aurora. फेरीज वहाँ पे जब फेरीज और अरोरा राजमहल पहुंचे तब मेलिफिसेंट वहाँ पे उनके लिए वेट कर रहे थे, इंतजार। It did not take long for the प्रिंसेस princess. टू फॉलो अंडर स्पेल, मतलब वो कुछ जादू कर रहे हैं ना, स्पेल ऐसे कर रहे हैं, तो प्रिंसेस उसका स्पेल में आ गई, उसका जादू का वो वेव्स में वो आ गई। Waves में फंस गई हो. हाँ फंस गई, चक्रव्यूह में फंस गई, है ना। हाँ Following a strange green light. उसने कोई स्ट्रेंज ग्रीन लाइट वो उसको फॉलो किया उसने। हाँ Aurora climbed up the dark tower steps. वो चढ़ी, Climb मतलब वो चढ़ी कोई स्टेयर्स, एक टावर का, डार्क टावर का, मतलब वो अपने शी जस्ट डूइंग समथिंग अंडर दैट स्पेल। या वो टावर रूम में एक स्पिनिंग व्हील था, बस वो डिस्ट्रॉय नहीं किया था इन लोगों ने, क्योंकि वो स्पिनिंग व्हील बच गया। in the tower was मालूम है ना, राजमहल का एक टावर होता है। spinning wheel tower. Aurora had never seen one before. अरोरा ने कभी नहीं देखा था स्पिनिंग व्हील, क्योंकि वो किंगडम में राज्य में था ही नहीं स्पिनिंग व्हील से ना, इसलिए वो जाके उसको टच की, She reached out to touch जाके उसको टच किया। She could not stop herself. अपने आप को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि स्पेल में थी ना वो। The room filled with smoke and Maleficent appeared. धुएं से भरा हुआ था. नहीं, रूम में अचानक धुआं भर गया, ये जब हुआ तो धुआं भर गया, ये सब मैजिक है ना, ब्लैक मैजिक। हाँ She had मतलब मेलिफिसेंट Maleficent खत्म जीत. हो गई वो वहाँ पे, शी हैड वन, वो जीत गई थी। The good fairies hurried through the castle trying to find Castle and trying to find the girl. गुड फेरी सब सर्च ढूंढने लगी। अरोरा कहाँ पे है। पर वो बहुत लेट हो चुकी थी. वो बहुत लेट हो लेट गया. हुआ था, बहुत देर हुआ। When they got there, Aurora had fallen into deep sleep. ऑलरेडी वो उसका नींद शुरू हो गया। Only two loves. ट्रू लव किस could now awaken, कि बस वो ट्रू लव का किस ही उसको जगा सकते हैं, तो वो ढूंढ रहे उसका ट्रू लव। Only two loves would not awake her. Could not awaken her. The true lover is उसको हाँ उसका जगा किस ही उसको जगा सकते हैं। The fairies remembered the young man Aurora had met in the woods. मतलब वो उनको याद आया कि हाँ एक एक young यंग man मैन था वहाँ पे, मिला था। जंगल में मिला था। जंगल में. They were sure Aurora loved him. उसको श्योर था कि अरोरा उसको पसंद करती है, वे उसको ढूंढने के लिए इसलिए उसको ढूंढना ही चाह रही है। the good fairies got busy and Cast a spell. cast a spell. Everyone would sleep until they found Aurora's true love, including the king's guest prince, Philip and his father, the king of a nearby kingdom. Just before he fell asleep, the prince's father said something strange. He said his son was in love with a girl from the woods. Oh, The good fairies remembered what Aurora had said about the young man in the woods. Then they understood Prince Philip was Aurora's true love. Flora, Fauna and Merryweather hurried out to look for the prince.
He was only one. He was the only one who could break the spell. He was a princess. He was a prisoner. in Maleficent castle. They set him free. He said he wanted to help. The good fairies gave him a seal of Virtue. and the sword Sword of truth. Sword of truth. Maleficent's Castle. castle was well guarded. All But- the good but- fairies, but- but the good fairies found their way out. He got out with their help. The good fairies got busy and Cast a spell. cast a spell. मतलब गुड फेरीज भी बिजी Busy हो गए और उन लोगों ने एक स्पेल कास्ट किया। वो स्पेल क्या है? सब लोग Spell means स्पेल में जैसे मेलिफिसेंट ने वो स्पेल किया ना, स्पेल मतलब वो जादू कुछ है, लेकिन वो मेलिफिसेंट ने बैड जादू किया, स्पेल किया। पहले उसने श्राप दिया और जब वो 16th बर्थडे को जब वो आई कासल में, तो उसने एक स्पेल डाला। मतलब वो अपने होश में फिर नहीं है, उनके कंट्रोल में है वो स्पेल से। चक्र मतलब करेक्ट, उनके चक्रव्यूह में। लेकिन ये लोग अच्छा स्पेल कास्ट किया, अच्छा स्पेल, गुड स्पेल। मतलब ये गुड फेरीज है ना, तो वो अच्छे स्पेल कास्ट करते हैं। तो उसने बोला कि सब लोग अभी सोएंगे जब तक वो ट्रू लव को वो ढूंढने तक अभी सब लोग सोने वाले हैं। किंग और उसका गेस्ट सब लोग सोने वाले हैं। हाँ, लेकिन वो सोने के पहले हाँ वो उसका गेस्ट था, एक पास वाला राज्य का एक किंग था, वो उसका गेस्ट था और उसका बेटा भी था, प्रिंस फिलिप। वो सोने के पहले, वो सो जाने के पहले वो प्रिंस फिलिप ने कुछ नहीं, प्रिंसेस फादर, वो प्रिंस का डैडी जो है, पास वाला राज्य का जो राजा है, उसने कुछ अजीब कुछ बोला। अजीब, हाँ पेरिस को कुछ अजीब बोला, समथिंग स्ट्रेंज। He said his son loved with the girl from the book. उससे बोला उसका सन को प्यार है, एक जंगल में जो एक लड़की मिली थी उससे प्यार हो गया है। हाँ, तो फिर पेरिस को समझ में आया, What Aura had said about Aura ने उनको कुछ बोला, कुछ अरोरा बताया। ने क्या बोला था उसको याद आया, उसने भी ऐसे कुछ बोला था। मतलब एक यंग मैरिज से वो क्या हाँ, वो भी यंग मैन से क्या करती है, ये भी बोल रहे हैं कि वो जंगल में मिला था। तो 2+2 किया। तब वो समझी प्रिंस फिलिप वाज Aura's true love. प्रिंस फिलिप ही था और सच्चा प्यार Aura का। फिर Aura found and hurried out to look for the princess. प्रिंस कहीं नहीं मिले क्योंकि वो मेलिफिसेंट ने प्रिंस को अपने कासल में बंद करके रखा है। Also प्रिंस हाँ, प्रिंस वो मेलिफिसेंट को भी पता है ना ये सारा, स्मार्ट है वो। he was the only who could break the spell. There is only one who could break the spell. वही अकेला है जो कि वो स्पेल तोड़ सकता है, चक्रव्यूह को चक्रव्यूह को तोड़ सकता तोड़ सकता है। He was a Prisoner. prisoner in है। castle. मेलिफिसेंट कासल, मेलिफिसेंट का महल में वो कैदी था। Prisoner means कैदी, they set him free. उसको छुड़ा दिया, छुड़ा दिया। छुड़ा दिया उसको। He कैदी said से he said he wanted to. उसने बोला मुझे मदद करना है। मुझे मदद चाहिए। नहीं, मुझे मदद करना है अपना प्रिंसेस का। Princess का। The good fairies gave him a seal. वो कवच दिया वर्च्यू का, वर्च्यू मतलब गुड क्वालिटीज का कवच Sword दिया। of truth. सोड ऑफ उसको एक तलवार तलवार। दिया, सच का तलवार दिया। सच्चाई का तलवार। मतलब उसका एनर्जी सच से मिलता है। वो तलवार का कवच को एनर्जी कहाँ से मिलता है? गुड वर्च्यू से, गुड क्वालिटी से। वर्च्यू मतलब गुड क्वालिटीज। वर्च्यू लिखा है ना यहाँ पे, शील्ड ऑफ वर्च्यू। शील्ड मतलब कवच Shield मतलब कवच। और वर्च्यू मतलब गुड Quality. क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज। सोड ऑफ तलवार। Maleficent's castle was well guarded. उसका राजमहल बहुत सिक्योरिटी गार्ड सब था वहाँ पे। Maleficent था। मेलिफिसेंट का कासल, लेकिन फिर भी वो फेरीज ने कैसे भी उसको छुड़ाया वहाँ।
But the good fairies found their way out. जैसे कि वहाँ से वो निकल गए. Good fairies. हाँ, 3 good fairies. He got out which they दिया है. had. उसका मतलब है कि वो हाँ. Maleficent did not want to Prince to kiss Aurora. She tried to stop him. She made Tony bushes grow up in his bushes path. grow up in his path. Maleficent. हाँ. He cut right through them with his sword. Then she turned herself into a dragon. She stood in the prince's path. She did not give him a chance to get around her. He did not give up. वो नहीं चाहती थी कि हाँ, Maleficent तो नहीं चाहिए कि Prince को किस करे. हाँ. she Try tried to to stop stop him. him. रोकने की कोशिश की. Correct. She made only busy to his path. थॉर्नी बुशेस से कोशिश किया कि वो थॉर्न वाला जो झाड़ है ना, थॉर्न को क्या बोलते हैं? थॉर्न काटा वाला झाड़ उसके 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 रास्ते में उसने ग्रो किया वहाँ पे. हाँ, उसने अपने सोल से वो सब कट किया. अपने आप को ड्रैगन बनाया. हाँ, प्रेस बनाया. इसको जो प्रिंस है वो प्रिंस के रास्ते में वो आ गया. She did not give him the chance to get around her. उसको कोई उसको चांस नहीं दिया कि हाँ और वो चारों अच्छा to get around her. अच्छा Aurora I thought she the dragon. Fine. He did not give up. उसने he did not give up का मतलब उसने he did not give up का मतलब वो प्रिंस ने वो सरेंडर नहीं किया. मतलब वो हाँ he did not give up मतलब वो अपने आप को नहीं he did not give up मतलब वो हार नहीं माना. वो इम्पोर्टेंट है. वो हम लोग जनरल इसमें भी यूज़ करते हैं. इट डू नॉट गिव अप मतलब आपका कंप्यूटर में कोई प्रोजेक्ट है और डिफ़िकल्ट है फिर भी आपने गिव अप नहीं किया. हार नहीं माना. आप कोशिश करते रहे. हम लोग जनरल लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं. The dragon charged toward the prince. It breathed. Breathed भी बोल सकते हैं. Breathed fire. There were flames all around. The princess all saw the flames. It was afraid. It ran away. Then the prince found himself out on the edge of a cliff. He had nowhere to go, but he could not let himself fall. He had to save Aurora. He threw his enchanted sword into the dragon's heart. The dragon roared in pain. Then he saw it fall. The dragon charged toward the prince. उसने अपना चार्ज लिया उसको. नहीं वो ड्रैगन वो प्रिंस की तरफ वो कूद पड़े. चार्ज मतलब टू राइड इवन हॉर्स भी चार्ज करते हैं. वो फास्ट उसकी तरफ जाना. ब्रीथ फायर. हाँ उसके मुंह से आग निकल. देर और फ्रेंड्स आग पूरे चारों तरफ आग ही आग फैल गई. द प्रिंस सॉ द फ्लेम्स. उसके घोड़े ने मतलब उसको आग को देखा और वो डर गया और वो भाग गया. Then the prince found himself out to the edge of cliff. फिर उसने देखा कि वो अपने आप को देखा कि वो क्लिफ मतलब एक पहाड़ का वो एज पे था. एंड पे तो वो गिर सकता है वहाँ से. क्लिफ मतलब पहाड़, छोटा सा पहाड़. क्लिफ पहाड़ का. और पहाड़ भी ऐसा पहाड़ है जहाँ पे स्टीप है. वो स्टीप है. वो गिर सकता है वहाँ से. ऐसा फ्लैट पहाड़ नहीं. क्लिफ. वो कहीं जाने के लिए उसके लिए जगह नहीं था. लेकिन वो अभी गिर भी नहीं सकता था क्योंकि उसको अरोरा को बचाना था.
तो enchanted sword with the dragon है. We have to say We have to वो say बताना Aurora. चाहता था पृथ्वी is enchanted sword मतलब Enchanted मतलब मैजिक sword, उसका तलवार, मैजिक तलवार. हाँ, Enchanted जो फेरीज ने दिया था उसको. हाँ, उसने मैजिक फेंका तलवार है. मतलब उसकी तरह हाँ, उसने वो ड्रैगन का हार्ट में हार्ट की तरफ फेंका. देखिए the dragon roared the thing Roared in उसको pain. दर्द हुआ उसको दर्द से वो दहाड़ दाल रोड इन पेन. थैंक गॉड कि मुझे थोड़ा हिंदी मालूम है. अभी हाउ आई वुड एक्सप्लेन टू यू. तो मुझे रोड करना पड़ता था. मैंने साइड पर तो तो उसने देखा उसने कि देखा कि ड्रैगन गेम गिर रहा है Philip raced back to the castle. He found Aura's room. He bent down and kissed her. She woke up and so did everyone Yes. else. That night there was a war. Aurora and the prince danced for a long time. The two fathers watched for a while. Then they started to plan a royal wedding. Everyone wanted Aurora and Prince Philip to live happy. हैप्पीली एवर आफ्टर. तो सब फेरी टेल्स में ना लास्ट लाइन हैप्पीली एवर आफ्टर है. जैसे हिंदी मूवीज में भी दिखाते हैं ना. एंड देन दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. हाँ, दे लिव. प्रिंस फिलिप दौड़ लगाया कैसल की तरफ हाँ, वापस वो वापस वो- राजमहल. उसने Aurora को रोक मिल गया उसको हाँ, He bent down and his mouth झुका इसकी तरह हाँ, किस किया उसको great. She woke up and so did everyone. वो जाग गई और सब लोग जाग गए. सब लोग जाग हाँ, वो पैलेस में कोई अच्छा नहीं. मतलब सब लोग उसमें सो रहे थे. ऐसा सब लोग सो रहे थे. मैनिफिसेंट में मैनिफिसेशन पर्टिकुलर मैनिफिसेशन में बस इसको सुलाया था, लेकिन वो थ्री फेरीज ने एक स्पेल लगाया और सबको सुलाया. अच्छा हाँ, और उसमें ऐसा स्पेल लगाया कि सब लोग अभी सो जाएंगे और जब हम लोग लेके आएंगे इसको और ये किस करेगा इसको, ये जागेगी तभी सब लोग जागेंगे. ऐसा उसने स्पेल किया था. अच्छा आपने ऐसा पढ़ा था हाँ क्या? हाँ दैट नाइट इट वाज अ बॉल. दूसरा वहाँ पे बड़ा पार्टी, किंग्स का पार्टी को बॉल बोलते हैं ना पुराने ज़माने में. जो बॉल बोलते हैं उसको, मतलब बड़ा किंग्स का पार्टी जो है बहुत रॉयल बॉल, यू नो, प्रिंस प्रिंसेस एंड ऑल दे हैव. Aurora and the prince danced for a long time. Aurora और प्रिंस जो है हाँ, उन्होंने बहुत फेमस लगा डांस किया वहाँ पे. या टू फादर दो फादर उसको बहुत दोनों राजा, उनका इसका फादर और उसका फादर, वॉच कर रहे थे उसको देख हाँ, रहे वॉच कर रहे थे happily. थे. Then they started to plan. प्लान किया रॉयल वेडिंग. प्लान किया. Everyone wanted Aurora prince to live happy. सब लोग सब लोग चाहते थे चाहते थे हैप्पी that they live happily ever after, and they did. मतलब ऐसे ही हुआ. हो गया finish? Nothing else? Okay, now we'll do something grammar, conditional tense. Okay, is okay? कल वो नोडल वर्ब्स बोल रहे थे ना वो, कि वो नोडल वर्ब बोलते हैं इसको, कंडीशनल नहीं बोलते. ऐसे जैसे लिखा था ना रनिंग मार्टिन. हाँ हाँ, लेकिन कंडीशनल इंग्लिश में भी है. तो मैंने गूगल किया तो ये सब मिला है. कंडीशनल टेंस इंग्लिश में भी है. उसको अलग अलग तरह का कंडीशनल टेंस है. एक जीरो कंडीशनल, टाइप वन कंडीशनल, टाइप टू, टाइप थ्री कंडीशनल. टाइप वन कंडीशनल जीरो कंडीशनल, उसके सेंटेंस में पहले एक प्रेजेंट टेंस है और इसके साथ एक प्रेजेंट टेंस है और फिर इसका बाकी का सेंटेंस में भी प्रेजेंट टेंस है. मतलब ये जीरो कंडीशनल में एकदम सिंपल टेंस यूज़ करते हैं वर्तमान काल में. तो इफ यू नीड आइस इट मेल्ट्स. अगर आप बर्फ को थोड़ा आपने उसको वार्म किया तो वो पिघल जाएगा. इफ इट रेन्स यू
गिरा तो आप भूल जाओगे। हाँ करेक्ट। इफ इट रेन्स यू गेट वेट, तो ये भी वर्तमान काल में है, ये भी वर्तमान काल में। ये बस मैं बस एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, बाकी बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं। ओके, सो दिस इज जस्ट वन बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट कंडीशनल है, पहला हिस्सा सेंटेंस का वर्तमान काल में है, लेकिन दूसरा हिस्सा फ्यूचर में है, भविष्य काल में, फ्यूचर टेंस में है। इफ इट रेन्स यू विल गेट वेट, अगर बारिश हुआ तो आप यू विल गेट वेट। इफ यू डोंट हरी वी विल मिस द ट्रेन, अगर आपने जल्दी नहीं किया तो हम ट्रेन मिस करेंगे। these sentences time is in the present, काल प्रेजेंट या फ्यूचर में है, and situation रियल है, they refer to a possible condition, रियल सिचुएशन है। लेकिन टाइप 2 कंडीशनल में वो रियल सिचुएशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन यू वुड गेट वेट, अगर बारिश हुआ तो आप डूब जाते हो, डूब जाते थे। इफ इट रेन मतलब बारिश नहीं हुआ अभी तक, लेकिन वो अनरियल है, और अनरियल भूतकाल है, प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज पास्ट टेंस, एंड मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया सेकंड कंडीशनल में। ये दोनों सिंपल था, ये दोनों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और दूसरा सेंटेंस का दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंडीशनल टेंस है, यू वुड गेट वेट, जहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि वुड गेट, तो इसमें वुड सब नहीं है, लेकिन इसमें वुड आ गया है ना। इफ़ यू वेंट टू बेड अर्लियर यू वुडंट बी सो टायर्ड, आप अगर जल्दी सो जाते थे तो आप इतना थक नहीं जाते, यू वुड नॉट बी सो टायर्ड। तो ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। थर्ड कंडीशन में और भी कॉम्प्लिकेटेड। इफ पहला हिस्सा सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट में है, एंड मेन क्लॉज में परफेक्ट कंडीशनल टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाद में आपको ये सब देखती हूँ, आपको नहीं, अब अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में ये आपको नहीं चाहिए। मैं जेरॉक्स करके आपको रखूँगा। नहीं, मैं जेरॉक्स कर, मैंने वही प्रिंट आउट वो तो मैं जेरॉक्स करके आपको देती हूँ। मतलब आप इजीली आप प्रिंट आउट ले सकते हैं ना फ्री में ऑफिस में। ये सब मतलब प्रिंट आउट लिए जेरॉक्स लिए। ठीक है, तो मैं आपको ये फिर मैं ईमेल कर सकती हूँ, ये आपको ईमेल करूँ आपको? हाँ, मैं ईमेल कर चुकी हूँ आपको, क्योंकि ये सब मैंने प्रिंट आउट लिया ना, तो इंटरनेट से ही लिया, और हमारे में नहीं। तो पहला हिस्सा इफ देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में, इफ इट हैड रेन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। और नेक्स्ट पार्ट, यू वुड हैव गॉट रेन, अगर रेन हुआ था तो आप बेड हो जाएंगे, यू वुड हैव गॉट रेन। इफ यू हैव वर्क हार्डर, अगर आपने ज़्यादा कोशिश किया होता तो यू वुड हैव आपका एग्जाम पास, यू वुड हैव पास, देखिए आपको ज़्यादा रेन, दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू। क्या, सो दिस इज द थर्ड कंडीशन। ओके, क्योंकि पिछली बार मैंने ठीक तरह से आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, और एडिट पार्ट में भी ठीक तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं था, एंड आई फेल्ट कि यू नीड prepositions and you need conditional, I feel, an article also you want, and some other that we see, but first we'll just finish this one. So present real condition, ये simple है, this is simple. If I go to a friend's house for dinner, I usually take a bottle of water. ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज प्रेजेंट रियल प्रेजेंट कंडीशन, सिंपल सिंपल simple present condition. Because the present we used to talk about what we normally do in real life situation, complicated नहीं है, simple. If I go to a friend's house for dinner, I usually take a bottle of wine or some flower. तो अगर मैं अपना फ्रेंड के घर में जाऊँ डिनर के लिए, तो मैं एक बॉटल ऑफ वाइन और थोड़ा फ्लावर्स लेके जाता हूँ, सब बॉटल वो तो प्रेजेंट है। हैव अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क, आई ऑफन गो टू बीच। जब मुझे थोड़ा एक दिन मिलता है ऑफ, तो मैं चला जाता हूँ। If the weather is nice, she walks to work. अगर weather ठीक है तो चलते जाती है। Jerry helps me with some homework when he has the time. Jerry मुझे homework के साथ हेल्प करते हैं जब उसके पास टाइम है। No, simple present है। I read if there is nothing on TV. मैं कुछ पढ़ती हूँ अगर टीवी पे कुछ नहीं है तो। What do you say when it rains? What do you do when it rains? क्या करते हैं जब वो बारिश होती है? मैं घर पे रहता हूँ, स्टे। Where do you stay
say if you go to Sydney, ये भी कंडीशनल है क्योंकि इफ है ना, इफ है, आप कहाँ पे रहते हैं अगर आप सिडनी जाते हैं तो आई स्टे विद माई फ्रेंड्स नियर द हार्बर, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ हार्बर के पास। हार्बर मतलब जहाँ पे शिप्स डॉक करते हैं, important is what if and when I use the present conditional using it suggests that something happens less frequently, using when suggests that something happens more frequently. If we use कर सकते हैं, when भी use कर सकते हैं conditional tense में। When I have a day off from work, I usually go to the beach. That means बहुत बार मुझे ऑफ मिलता है। If I have a day off from work, I usually go to the beach. मुझे हमेशा ऐसा ऑफ डेज नहीं मिलता। If use करते हैं जब कम डेज मिलते हैं ऑफ, रेगुलरली अगर ऑफ मिलते हैं तो when use करते हैं। कंडीशन हाँ कंडीशन प्रेजेंट अनरियल कंडीशन अच्छा लेकिन थोड़ा मुझे लगता है इट्स गेटिंग अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड यार। इफ आई ओन द कार, ये पास्ट टेंस हो गया, अगर मेरे पास कार होता तो आई वुड ड्राइव टू वर्क, आई वुड टेक द आई वुड ड्राइव टू वर्क, मैं काम पे मैं ड्राइव करके जाता था करेक्ट, बट आई डोंट ओन अ कार, लेकिन मेरे पास कार है। would travel around the world if she had the money. She had no money. अगर उसके पास पैसा होता तो वो पूरा दुनिया ज़्यादा पैसा नहीं है। Okay. I would read more if I did not watch so much TV. If I didn't watch so much TV, अगर मैंने इतना TV नहीं देखती तो मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ। Mary would move to Japan if she spoke Japanese. Mary जापान जाती थी अगर उसको जापानीज आता था, बोलना if they work harder they would earn more money, ज़्यादा मेहनत ज़्यादा मेहनत करते तो लोग ज़्यादा कमाते हैं। would earn, what would you do if you want the lottery? अगर आप लॉटरी जीते तो आप क्या करते हैं? I would buy a house. Where would you live if you move to the US? अगर आप US शिफ्ट करते तो आप where would you live? आप कहाँ पे रहते हैं? I would live in Seattle. मैं Seattle में रहता था। Exception. The present and dual form was not possible. would means मतलब when we talk about would when we talk about past method would देखो will conditional is हाँ नहीं मैं बताती हूँ। देखो सिंपल कंडीशनल में ना वो would यूज़ नहीं करते हैं जब ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, वो फ्यूचर टेंस है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कंडीशनल टेंस में would यूज़ करते हैं क्योंकि वो सेंटेंस का दो हिस्सा होता है ना, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट से इफ से शुरू होता है और मेन क्लॉज ये है। तो इफ के साथ जो टेंस है अगर वो पास्ट है या वो पास्ट परफेक्ट है तो मेन क्लॉज में would have वो सब यूज़ करते हैं। तो ये इफ के साथ जो टेंस है उसके ऊपर है। उसके साथ अगर प्रेजेंट टेंस है, सिंपल टेंस है, हमें भी सिंपल टेंस आएगा। लेकिन इसके साथ अगर पास्ट टेंस है तो यहाँ पे would have, यहाँ पे जो टेंस है इसके साथ या when के साथ उसके ऊपर है। present real condition the form was not, you should always use were. However, real condition was, if we were French we would live in Paris. अगर I है ना, if I was, लेकिन he के साथ was, if she were she would buy a word. ये past tense है ना, if she were वो yacht खरीदी। I would play basketball if I were taller. अगर मैं लंबा होता तो मैं बास्केटबॉल खेलता। तो इसके साथ past tense है तो यहाँ पे would है। I would buy the computer if it were cheaper. अगर वो सस्ता होता तो मैं I would buy the computer if it was cheaper. I would buy the मैं would क्या नहीं बोल सकते, I could बोलना चाहिए। If I went to Egypt, I could learn Arabic. अगर मैं इजिप्ट जाऊँ तो मैं अरबिक सीख सकता हूँ। ये कोई रीज़न करता है।
शी माइट वुड नहीं वुड मे, ये दोनों साथ में यूज़ नहीं कर सकते वो बोल रहे हैं। ऐसे कोई यूज़ भी नहीं करते, तो मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो आपको इफ शी हैड द टाइम शी माइट गो टू द पार्टी, उसके पास अगर टाइम होता शी हैड शी माइट गो टू द पार्टी, वो हैड हो जाती थी पार्टी। If I had more time, I would exercise after work. अभी exercise तो शुरू हो रहा है, ये present आपके these are difficult, present आपके conditions. Some of your answers are incorrect. Did you hear about that guy who won $180 million in the lottery? आपने सुना वो आदमी के बारे में जिसने $180 million जीता लॉटरी में? If I win that much money, I would quit my job the next day. अगर नहीं जीता होता उतना पैसा तो मैं अगले दिन ही मैं अपना नौकरी छोड़ दूँगा। Okay, so if I you're right. विन को आपको कॉन्जुगेट करना है, मतलब वो टेंस आपको निकालना है। विन बस वर्ब है टू विन, तो आप कोई भी टेंस में डाल सकते हैं। हाँ, आप पहले ट्रांसलेट करेंगे ना तो आपको मिलेगा करेक्ट। आपने सुना वो आदमी के बारे में जिसने $180 million जीता था लॉटरी में? अगर मैं जीता होता उतना पैसा तो मैं अगले दिन ही अपना नौकरी if I won past tense, simple past. Yeah. If I won W-O-N. If I won that much money, I would quit. ये past tense है तो यहाँ पे would आएगा. I would quit. Yes, but they don't want anything. You will have no requirement. Yeah, but not no required. But you Yeah, I have. I love everything. And you know the samosa. Samosa खाएंगे? I'm good. He's saying yes, thank you. मुझे भूख लगी. Good. हाँ. I would quit my job. हाँ, लेकिन आप quit भी लिखो ना. I would quit. I would quit my job the next day. मैं अगले दिन ही मैं quit कर सकता हूँ। ऐसे मुझे लगता है ना आपको तो choice अच्छा है ना, ये या ये choice आपके लिए ज़्यादा अच्छा है ना, because this is little difficult for you, but it doesn't matter. हाँ, वो बोल रहे हैं अगर मुझे लॉटरी मिलता तो मैं ट्रैवल करता, तो I would. Correct. I would travel. I would travel around the world and would stay. बस एक if है कि अगर मुझे लॉटरी मिलता और बाकी सब would you know. Luxuries होता है. If I would want. Correct. Or I can say if I wanted anything. If I wanted anything, ये second sentence है. If I wanted anything, ये simple past tense में है. भूतकाल हाँ. If I wanted anything, I would buy. Correct. If I saw. Correct. Very good. If I saw a beautiful Mercedes that I wanted, I bought it. no, I would buy it. यहाँ पे simple past है तो यहाँ पे I would buy it. हाँ, ये एक sentence है. If से शुरू होता है, वो if का clause है और ये main clause है. Correct. I would buy it. If I wanted to stay in a beautiful hotel and the hotel. And that would be. No, and the hotel hotel was full. मतलब past tense, simple past tense, भूतकाल. Hotel was full. अगर वो hotel full होता, तो मैं वो hotel खरीदता. I would buy. मैं वो होटल खरीदता. अगर वो होटल फुल होता तो मैं होटल खरीदता. You know? और सब लॉटरी मिलने के बाद
एंड मेक देम गिव मी अ रूम, और उनको मैं बोलता था कि मुझे रूम दे दो क्योंकि मैंने होटल खरीदा है. I could हाँ, I could do anything in the world if I had $180 million. Correct. I am Starting to sound a little materialistic. But मटेरियलिस्टिक मतलब मैं ऐसा साउंड कर रहा हूँ मतलब जैसे मुझे बहुत पैसे का लालच है, सामान का सब लालच है. हाँ, बट वेल I would do good things with the money as well. हाँ, मतलब मैं अच्छा थिंग्स भी मैं करता था पैसे के साथ. इफ एनीबडी नीडेड हेल्प, अगर किसी को पैसे की, सब पास्ट टेंस में हो रहा है और अनरियल भूतकाल में हो रहा है ये सब. अगर लॉटरी मिलता तो मैं ऐसा करता ही. अगर किसी को पैसे की ज़रूरत होता आई वुड गिव देम. इफ के साथ अगर पास्ट टेंस है तो यहाँ पर वुड आता है. I would give, no? Yeah, I would give. I would give them some money to help them out. I would donate money to charities. I would give money to help support the arts. If I would win that much money, I wouldn't keep it all for myself. मैं वो सब अपने लिए नहीं रखता था. I would. I would help. Very good. As many people as possible. मैं जितना लोगों का मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं उतना हेल्प करता था. अच्छा, फिर से आप एक बार पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे आप? Did you hear about that guy who won $180 million in the lottery? If I won हाँ. that much money, I would quit my job the next day. I would travel around the world and would stay in the most luxurious hotel. Yeah. If I wanted anything, I would buy it. If I saw a beautiful Mercedes that I wanted, I would buy it. If I wanted to stay in a beautiful hotel and the hotel was full, I would buy the hotel and make them give me a room. I could do anything in the world if I had $180 million. Oh, I am starting to sound a little materialistic. Correct. Well, I would do good things with the money as well. If anybody needed help, I would give them some money to help them out. I would donate money to charities. Very good. I would give money to help support the arts. If I would win that much money, I wouldn't keep it all for myself. I would help as many people. Very good. Yes. अभी आप ये मुझे ट्रांसलेट करके बताओ क्या है? क्या आप एक गाय के बारे में जो हाँ, आदमी के बारे में आप जानते हैं जिसको हाँ 180 मिलियन जो है डॉलर जीता है हाँ लॉटरी में. हाँ अगर उसी जगह मैं हाँ जीतता हाँ. अगर मैं जीतता मनी हाँ. मच इतनी हाँ. ज़्यादा अमाउंट हाँ अगर मैं जीतता हाँ आई वुड टू मैं अगले दिन अपना जॉब से रिजाइन या छोड़ करेक्ट देता. करेक्ट करेक्ट और जब छोड़ने के बाद आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड. मैं पूरा वर्ल्ड घूमता हाँ पैसों से हाँ मोस्ट लग्जरियस और जहाँ जहाँ घूमता वहाँ पे लग्जरी होटल में हाँ रहता था. रहता था. मतलब ये बता रहा कि मतलब हाँ अनरियल बता रहे हैं. मतलब अगर मुझे लॉटरी मिलता तो मतलब मैं क्या करेगा, करता? मतलब हाँ करेगा. करेगा. और अनरियल है मतलब वो सच नहीं है, वो उसका इमेजिनेशन है, उसका कल्पना है. अबाउट फ्यूचर. हाँ अगर अबाउट मेरे फ्यूचर. पास होता करेक्ट. तो मैं ये करता. हाँ मतलब ये कंडीशनल है. इस मतलब
कंडीशन, अगर मेरे पास होता तो मैं ये करता, कंडीशन है इसमें. If I wanted anything, सुना मुझे जो भी चाहिए होता मैं तुरंत उसको हाँ खरीद लेता. करेक्ट. यदि मुझे कोई ब्यूटीफुल मर्सिडीज हाँ. वैन दिखती हाँ तो फिर मैं उसको भी खरीद लेता. ये अरब्स जैसे मुझे लग रहा है ना, गल्फ में जो अरबी लोग हैं ना वैसे. हाँ. If I wanted to stay in यदि मुझे किसी सुंदर मतलब ब्यूटीफुल होटल में हाँ रुकना होता है तो अगर वो होटल फुल होता है हाँ फुली बुक है, मतलब जगह नहीं है होटल होटल कोई खरीदने का. हाँ हाँ I could buy the hotel and make them करेक्ट करेक्ट. I could मैं मतलब कुछ भी मतलब मैं कुछ भी कर सकता था अगर हाँ मेरे मेरे पास उतना पैसा होता है. $1 होता हाँ. वो I Sound a little materialistic. ओह मैं थोड़ा materialistic जैसे लग रहा हूँ ना, मतलब मैं थोड़ा materialistic मतलब ये सामान चाहिए वो मतलब लोभ और लालच. हाँ लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे. well I would do good things with the money money as well. मैं अच्छी चीज़ भी मैं करता पैसे से. अच्छी चीज मैं यूज करता हूँ. हाँ यूज़ करता मैं. करूँगा. हाँ करेक्ट. I would do. Yeah. If anybody needs help, Needed help. अगर किसी किसी को को मुझसे अगर हेल्प चाहिए हो Correct. चाहिए होती तो मैं उसको भी मतलब मदद करता हाँ पैसे देके. करेक्ट करेक्ट. मैं जो प्रोवाइड मुझे उनको मैं चैरिटी को चैरिटी को भी मैं पैसा डोनेट करता. सपोर्ट मतलब आर्ट को सपोर्ट करने के लिए हाँ भी मैं वहाँ पे मनी देता. हाँ करेक्ट. अगर मैं यदि मैं इतनी मनी अगर जीतता हाँ I would not keep it all for मैं अपने लिए हाँ नहीं रखता. हाँ मैं अपने लिए नहीं रखूँगा. करेक्ट. I would help as many people मतलब जितना ज़्यादा हो सके हाँ मैं लोगों की मदद करूँगा. बिल्कुल करेक्ट. दिस इज कंडीशन. और ये कंडीशन है एक्सरसाइज 3. प्रेजेंट ये कंडीशन Michael बोल रहे हैं शैरन आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम्स एट वर्क एंड आई वाज वंडरिंग इफ यू माइट बी एबल टू गिव मी सम एडवाइस. तो बोल रहे हैं शैरन मुझे थोड़ा काम पे थोड़ा प्रॉब्लम है और मैं वंडर कर रही हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आप मेरा मदद कर सकते हैं क्या. मतलब एडवाइस मतलब कुछ एडवाइस मतलब एडवाइस देना मतलब कुछ समझाओ. हाँ एडवाइस मतलब आई डोंट नो मतलब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कुछ एडवाइस दो. हाँ एडवाइस करेक्ट. हाँ तो शैरन बोल रही है श्योर व्हाट्स द प्रॉब्लम. तो एक प्रॉब्लम क्या है. माइकल बोल रहा है कंप्यूटर सेल्स बिजनेस इज मोर डिफिकल्ट देन आई थॉट. The computer sales business more difficult than I thought. Computer sales हाँ सेल्स का जो बिजनेस है हाँ वो उसके लिए मतलब वो मैंने बहुत डिफिकल्ट जैसा उसने मैंने सोचा जितना था. सोचा था उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट Difficult है. है. हाँ When when customers came, come in to look at the new computer models come in. हाँ तो इससे ये सिंपल है. हाँ तो कम इन मतलब हाँ प्रेजेंट टेंस ही लिखना है, कम ही लिखना है. सेम हाँ हाँ when customers come in to look at the new computer models they often ask me. हाँ ask ही लिखना है. हाँ सिंपल है वो जीरो कंडीशनल बोलते हैं मतलब दोनों वर्तमान काल है ना दोनों प्रेजेंट टेंस है. they ask me which model they should buy. मतलब जब कस्टमर आते हैं ना खरीदने के लिए तो पूछते हैं मुझे कौन सा मॉडल खरीदना चाहिए. you know if they ask हाँ if they ask me to suggest a model अगर हाँ I give me no I use I am means me be be मतलब वो name is अरे be मतलब वो क्रिया कौन सा है to be.
उसमें कैसे कॉन्जुगेशन है, आई एम, यू आर, ही इज, ही इज, वी आर, यू आर, दे आर, वो वर्ब टू बी है। तो इसमें क्या है, हाँ, आई एम यूजली क्वाइट ऑनेस्ट विद देम, मतलब वो मुझे अगर पूछते हैं कि कौन सा मॉडल खरीदना है तो मैं उसके बारे में मतलब मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। हाँ, क्या ईमानदारी से, हाँ, मतलब जो मैं सच बोलता हूँ। सच बोलता हाँ, हूँ। मोस्ट most computer users don't need a very advanced computer, they just need a basic model। मतलब मोस्टली कंप्यूटर यूजर्स को इतना एडवांस मॉडल की जरूरत नहीं है, उनको बस बेसिक मॉडल की जरूरत है, They just need a basic model which they can use just for word processing, bookkeeping and internet access. If I'm honest, I recommend. if I'm recommend. हाँ, मतलब अगर मैं ऑनेस्ट एंड उनको recommend करता हूँ मतलब. हाँ, recommend ही लिखना है, कॉपी लिखना है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। Basic model. हाँ, and I recommend one of the cheaper models. My boss gets sandal, GETS. Yeah. Yes, here comes the samosa. Plural. Gets, हाँ? Plural. Similar. हाँ, plural. नहीं, plural नहीं है वो। I get, you get, Yeah, he gets. he Conjugation है, तो third person singular है। Yes. हाँ, My boss gets angry to me. हाँ, उन उसको लोगों गुस्सा का आता है, वो गुस्सा आता मैं है। चीपर मॉडल आप कस्टमर्स को बताओ कि ये खरीदो, सस्ता है तो बॉस को गुस्सा आता गुस्सा है। होता है. He always says. He always says that a good salesperson can Convince a customer to buy one of the more expensive advanced models. मतलब वो हमेशा बोलते हैं कि एक अच्छा सेल्स पर्सन है तो कस्टमर को एक्सपेंसिव मॉडल भी खरीदा सकते हैं। ज़्यादा अमाउंट का एक्सपेंसिव अमाउंट जो अगर आप अच्छा सेल्समैन है तो ये लोग अच्छा एक्सपेंसिव मॉडल भी खरीदेंगे आपसे, यू नो, मतलब इसका मतलब है कि आप अच्छा सेल्समैन नहीं हो, इसलिए आप चीपर मॉडल बताते हो। हाँ, तो आप कन्विंस करते हैं उनको। मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसा उसको झूठ बोलना, यू नो। हाँ, माई सिचुएशन, आप क्या करते हैं मेरी सिचुएशन में होते तो? Isn't it wrong? Then buy something which they don't need. गलत नहीं है कि उसको ऐसे एडवाइस देना कि हाँ, गलत एडवाइस देना कि आपको ये मॉडल की ज़रूरत है, यू नो। शैरन बोल रही, वो हो गया। हाँ, I think you can help your customers make एंड इंटेलिजेंट डिसीजन। मतलब मुझे लगता है कि आपको आपका कस्टमर्स मुझे लगता है कि आपको आपका कस्टमर्स को एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेने को मदद करनी चाहिए। हाँ, हाँ, if I were you, अगर मैं आपको पास्ट टेंस है, हाँ, ये पास्ट टेंस है। Then if I were you, I would educate. मैं कस्टमर्स को मैं एजुकेट करती, यू नो, मैं उनको I would educate the customers. I would teach. I would teach them. मैं उनको सिखाती how to make कैसे सही डिसीजन लेना है। हाँ, by themselves. हाँ, वो लोग खुद डिसीजन लेते हैं। मैं उनको नहीं बताती कि कौन सा मॉडल है, मैं उनको सिखाती कि ऐसा आपका नीड है तो ये मॉडल, ये है तो आप खुद डिसीजन ले लो, यू नो, तो मेरे ऊपर नहीं आएगा वो। I would not make. correct. Decision for that. When a customer asks who, When a customer asks the question, no, हाँ, when a customer asks, second form, हाँ, ask. नहीं ask he ना, I ask, you ask, he asks, ASKS, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये टू आस्क है क्रिया, उसका थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है। Ask the question. आंसर इट ऑनेस्टली, आप कुछ सच जवाब दो, यू नो। You don't need to lie to the customer. आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आप
you bite your nails. You bite your nails. Even I bite my nails. You don't need to. Don't need to bite your nails. झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कस्टमर्स को. And you don't need to make a decision for them. them. और आपको उसके लिए डिसीजन लेने लेने की की जरूरत जरूरत नहीं है. आपको खुद लेने दो. तो अभी ये समोसा था. You have the samosa. You will continue. Then I said, Correct. Very good. मैं इन्हें expensive computer to a customer
My boss complained. कंप्लेन्स, Complained. क्योंकि वो थर्ड पर्सन है ना. बॉस मतलब ही कंप्लेन्स. That I am not trying hard enough. हाँ. What will you What tell would you him? tell मतलब वो माइकल बोल रहा है कि जब मैं हम्म. बेचता नहीं हूँ, मैं जब मैं इनएक्सपेंसिव मतलब इतना चीप कंप्यूटर मतलब मैं बेचता हूँ कस्टमर को, तो मेरा बॉस कंप्लेन करता है कि मैं कोशिश नहीं करता है. हम्म. तो आप उसको क्या बोलते? तो शैरन बोलती है इफ आई वर्ड if I am in your situation, लेकिन past tense is better I feel, you know. If I were, मतलब मैं आपका situation में होती तो, if I were, W-E-R-E, हाँ. If I were in your situation, I would. tell me. I would. Correct. That. I was not comfortable. Correct. Forcing customer to buy a product which they don't need. मतलब मैं अगर आपकी दुकान में होती तो मैं उसको बता देगा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसको जो जिसको जैसे इसकी जरूरत है, हाँ, उसकी उसको जरूरत के हिसाब से हाँ करेक्ट. जब मैं उसको नहीं दे रहा जरूरत नहीं है हूँ तो मैं वो कुछ नहीं फोर्स करता. नहीं करता. उसको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए. हाँ उसको ज़रूरत नहीं है तो मैं उसको ऐसे गलत एडवाइस नहीं दूँगी. That you don't want to lie to honest ऑनेस्ट people. पीपल उसको बता दो कि आपको ऑनेस्ट पीपल को से आपको लाइफ झूठ नहीं बोलना है. And that you want to you provide them with provide good them service. with गुड सर्विस देना चाहिए. provide them. हाँ प्रोवाइड करना. रिमाइंड हिम दैट व्हेन कस्टमर्स Good गेट गुड सर्विस कॉपी. उनको याद दिलाओ कि हाँ जब कस्टमर्स को अच्छा सर्विस मिलता है तो वो service. They return दे रिटर्न टू अ स्टोर और दे व्हेन कस्टमर गेट गुड सर्विस दे रिटर्न. हाँ to a store and spend more money. Like that. माइकल This बोल is- रहे हैं. हाँ like that. I think that's a great idea. मुझे लगता है दैट्स वो अच्छा आइडिया है. He might He be might change his might mind if I said to him. about your present. हाँ वो अपना मन बदल सकता है अगर मैं If I said दैट टू हिम, अगर मैं उसको वैसे बोलूँ तो maybe maybe he will will realize. he He will will realize. realize. अब शायद वो उसको समझ में आएगा कि उसको समझ में आएगा कि that गुड good सर्विस service is most important thing टू कस्टमर्स. to customers. Consumers. कंज्यूमर्स के लिए अच्छा गुड सर्विस सबसे इम्पोर्टेंट है. एंड ऑफ कोर्स And of course, I will feel be आई विल फील much more comfortable. दैट मच मोर कम्फर्ट और मुझे भी अच्छा लगेगा यू नो. Much more comfortable. If I will. if I were able to or if I was able to if I was able no no if I would be If I would be one minute if I were much able more comfortable. if I were able to be honest If I will. if I were able to be honest with the customer if I were able if I were if I were able to be ईमानदार रहूँगा. हाँ नहीं अगर मैं और कंफर्टेबल होता अगर मैं इफ आई वर एबल वर W-E-R-E और इफ आई वॉज एबल टू बी वॉज भी लिख सकते हैं. इफ आई वॉज एबल टू बी हाँ इफ आई वॉज एबल टू बी Honest with the customer. अगर मैं कस्टमर से ऑनेस्ट हो सकता हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा. थैंक्स फॉर एडवाइस. Real condition, past and real condition. मतलब ये थोड़ा complicated है ना. If I had enough money, past tense है.